Good morning, dear students. How are you? Today I am going to teach you the next part of the present lesson, rights. We are doing our fifth lesson titled Rights, and this lesson has been taken from your political theory book for 11th class. So, previously we read about kinds of rights. This time we will discuss about राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आज हम जो अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बातें करेंगे, उनके बातों को समझेंगे। सो लेट अस बिगिन टुडेज कंसेप्ट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। राइट्स नॉट ओनली place obligations upon the state to act in a certain way, for instance to ensure sustainable development, but they also place obligations upon each of us. Firstly, they compel us to think not just of our own personal needs and interests, but to defend some things as being good for all of us, protecting the ozone layer, minimizing air and water pollution, maintaining the green cover by planting new trees, and preventing cutting down of beautiful forest trees, maintaining the ecological balance to prevent animal hunt in the forest and destroying vegetation are things that are essential for all of us. They represent the common good that we must act to protect for ourselves as well as for the future generations who are entitled to inherit a safe and clean world without which they cannot lead a reasonably good life. So dear students, अधिकार जो हमारे हैं उनके साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियां भी मिली हैं। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं, स्टेट पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वे खास तरीके से काम करें, इस तरीके से वो राज्यों को तैयार नहीं करते कि कोई ख़ास तरीके से राज्य काम करे, बल्कि हम सब की भी वो जिम्मेदारी है वो बढ़ा देते हैं, उनको भी वो निर्धारण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टिकाऊ विकास का जो मामला हम ले लेते हैं कि टिकाऊ विकास क्या होता है, तो हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्यों को कुछ कदम उठाने हैं बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। राज्य हमें बाधित करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों की ही न सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हितकर हैं। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु प्रदूषण को रोकना, जल प्रदूषण को कम करना, नए नए वृक्ष लगाकर जंगलों की पृथ्वी को हरा भरा करना, वातावरण को सुधारना, जंगलों की कटाई की रोक लगाना और पूरी धरती को हरियाली जो है बरकरार रखना, ये सारी की सारी हमारी एक जिम्मेदारी होती है। हम अपने जो परिस्थिति संतुलन है उसको कायम रखें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें करनी होती हैं जो हम सब के लिए अनिवार्य हैं। ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए भी जरूर करना है। आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ रख पाने का हमारा अधिकार है। इसके बिना वो बेहतर जीवन नहीं जी सकते। नेक्स्ट, सेकेंडली, they require that I respect the rights of others. If I say that I must be given the right to express my views, I must also grant the same right to others. If I do not want others to interfere in the choices I make, the dress I wear or the music I listen to, I must refrain from interfering in the choices that others make. I must leave them free to choose their music and clothes, whatever they like they are free to do. As I can do, they are also given the same right in the same way. So I can use the right to free speech, I can deliver my speech, I can express myself, to incite a crowd to kill my neighbors. In exercising my rights, I cannot deprive others of their rights. If I want my rights to be preserved in the same way, the others should also be given the rights or to do the things in their own way
according to me, as I do myself. Many rights are in other ways limited by the principle of equal and same rights for all. My rights जो मेरे अधिकार हैं, in the other words limited by the principle of equal, ये जो समानता के अधिकारों से ही सीमित होते हैं, एंड सेम राइट्स फॉर ऑल, और सभी के लिए वो समान अधिकारों की मांग करते हैं। दूसरा यह बात कि अधिकार ये अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार ही मिलना चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी यही अधिकार देना होगा जो मैं अपने लिए अधिकार चाहता हूँ। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता, तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में दखलंदाजी करने से बचना होगा। मुझे भी कोई हक नहीं है वहाँ पे कि मैं दूसरों के वहाँ पे जो दखलंदाजी करूँ। मुझे उन्हें भी उन्हीं की पसंद के कपड़े या संगीत चुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने का अधिकार का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जो मुझे बोलना है, जो मेरे हित में है, वो उसको मुझे बोलने का अधिकार है। मुझे म्यूजिक भी सुनने का अधिकार है। उदाहरण के रूप में, यू हैव द राइट टू लिसन म्यूजिक, बट इफ़ यू play the music at a high pitch and it sends disturbance to your neighbors, at that time their freedom, their rights begins, and in that situation you are not allowed to listen to music at a high pitch, because music pleases you but it disturbs their time, it disturbs their lives. At that time you should not be given that right. आपको अधिकार है तो वो दूसरे को भी अधिकार होना चाहिए। आपको आनंद आ रहा है लेकिन आपका म्यूजिक लिसन करने में आनंद उनके लिए विघन का कारण न बने, ये चीज़ यहाँ पे देखनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने के अधिकार का इस्तेमाल अपने पड़ोसी की हत्या के लिए, भीड़ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता कि मुझे बोलने का अधिकार है और मैं इस तरीके से अपने पड़ोसी की हत्या करने के लिए, मैं एक भीड़ है पड़ोस में, उसके प्रति एक वातावरण तैयार कर दूं जिससे कि उस पड़ोसी की हत्या करने के लिए एक भीड़ है वो उकसाई जा सके। ऐसा मेरा अधिकार नहीं है। अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मैं दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। ये मेरा अधिकार नहीं है। इन अदर वर्ड्स, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मेरे अधिकार सबके लिए बराबर हैं। जो मुझे अधिकार है वो सबको अधिकार मिले। मेरे अधिकार सबके लिए बराबर और एक ही अधिकार के सिद्धांत की सीमाओं में बंधे हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट बेटा। सो नेक्स्ट, I must refrain from interfering in the choices that others make. I must leave them free to choose their music and clothes. I cannot use the right to free speech to incite a crowd to kill my neighbors. In exercising my rights, I cannot deprive others of their rights. My rights are, in the other words, limited to the principle of equal and the same rights for all. Thirdly, we must balance our rights when they come into conflict. For instance, my right to freedom of expression allows me to take pictures. However, I take pictures of a person bathing in his house without his consent and post them on the internet. That would be a violation of his right to privacy. तीसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि जिस तरीके से, तीसरे में क्या, टकराव की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। मसलन अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है कि मैं कहीं से भी कोई तस्वीर ले सकता हूँ, मुझे ये अधिकार है, लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीरें ले लूँ और उसे इंटरनेट पे पोस्ट कर दूँ, तो ये उसकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, फोर्थली, चौथा जो यहाँ पे एक बड़ा कारण है
Citizens must be vigilant about limitations which may be placed on their rights. A currently debated topic concerns the increased restrictions which many governments are imposing on their civil liberties of citizens on the grounds of national security. Protecting national security may be defended as necessary for safeguarding the rights and well-being of citizens. But at what point could the restrictions imposed as necessary for security themselves become a threat to the rights of people? Should a country facing the threat of terrorist bombing be allowed to curtail the liberty of citizens? Should it be allowed to arrest people on mere suspicion just? Should it be allowed to intercept their mail or tape their phones? Should it be allowed to use torture to extract confession? चौथा, अगर यहाँ पे बात मैं करूँ तो नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना होगा। उनको अपने पर नियंत्रण जो लगाए गए हैं उनके बारे में उनको खुद सोचना होगा कि जो उनके ऊपर नियंत्रण लगाया गया है वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ किस हद तक वो सही है, ये बात उनको तय करनी होगी। आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है यह बढ़ते प्रतिबंधों में से संबंधित है। ये प्रतिबंध कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रता पर लगा रही हैं। नागरिकों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिए जरूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाए तो क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या उन्हें महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने या फ़ोन टेप करने में छूट दी जा सकती है? क्या सच कबूल करवाने के लिए उसे यातना का सहारा दे देना चाहिए? ऐसी स्थितियों में यह सवाल उठता ही है कि संबंध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं बन रहा। ये चीज़ें यहाँ पे हमें देख लेनी है। In such situations, the question to ask is whether the person concerned poses an imminent threat to society. Even arrested persons should be allowed legal counsel and the opportunity to present their case before a magistrate or a court of law. We need to be extremely cautious about giving government powers which could be used to curtail the civil liberties of individuals, for such powers can be misused. Governments can become authoritarian and undermine the very reasons for which governments exist, namely the well-being of the members of the state. Hence, even though rights can never be absolute, we need to be vigilant in protecting our rights and those of others, for they form the basis of a democratic society. ऐसी स्थितियों में हमें यहाँ पे देख लेना चाहिए अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए कोई बात अगर खतरा बन जाए तो क्या कोई आतंकी बमबारी या धमकी का सामना करते हुए राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। क्या उन्हें महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने या फ़ोन टेप करने की छूट दी जा सकती है? क्या सच कबूल करवाने के लिए उसे यातना का सहारा ले लेना चाहिए जैसे पुलिस को? ऐसी स्थितियों में सवाल उठता है कि संबंध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं है। गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की इजाज़त और दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं और वे उन उद्देश्यों की जड़ खोद सकती हैं जिनके लिए सरकारें बनती हैं, यानी लोगों के कल्याण की। इसलिए यह मानते हुए
भी कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते। हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समानता की बुनियाद का निर्माण करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेसन। सो next time we will do our last chapter of this book, and we have completed this book because our syllabus have been revised and it has been deleted, many chapters have been deleted, but let us see, and don't worry, we are ready to do those lessons which are deleted. We will do those lessons in the classroom for only knowledge sake. So actually the question paper will not compose of those chapters, so we just will do these chapters only for the sake of knowledge. Only, as I already told you, only one chapter is left from this book, and that is development, lesson number 10. And as previously I have told you, exam scheme of this book, chapter wise marks. So once again I will tell you about the exam scheme. We shall know about the marks chapter wise we will get in our next video, or maybe in the class, because soon our schools are going to open. So most of the things we will discuss in the class. So this is enough for today, my dear students. Hope you are doing well. May Goddess Saraswati bless you. Thank you.